we are going to share a prophetic revelation about the spiritual senses. और हम आपके साथ आज शेयर करेंगे प्रोफेटिक रेवलेशंस के कैसे आप स्पिरिचुअल सेंसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं. Sight, seeing, hearing, smelling, taste, touch, like that. In the same way, spiritually also, we have many senses, but we'll only discuss today spiritual 5 senses. But spiritually, we have many senses. जिस तरह आप जिस्मानी लिहाज से देखते हैं कि आपके 5 तरह के एहसास होते हैं, सेंसेस होते हैं: खाना, छूना, महसूस करना, सुनना और सूंघना. इसी तरह रूहानी तौर पर भी आपके सेंसेस होते हैं. सेंसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आज हम 5 सेंसेस के बारे में बात करेंगे. The Spirit of God wanted to lead us and grow us day by day on hearing, seeing, smelling, touching, feeling God day by day, or spiritual realm day by day. खुदावंद का रूह हमें लीड करना चाहता है और हमें हर रोज दिन ब दिन वो हमें बढ़ाना चाहता है. कैसे? ताकि हम देख सकें, सूंघ सकें, महसूस करें, सुन सके और छू सकें. That's why whenever Holy Spirit come in people's life, they feel it. They feel it. They feel the Holy Spirit all over them, because their spiritual sense of feeling will be unlocked. इसी तरह जब हम देखते हैं, जब रूहुल कुद्स पहली दफा जब नाज़िल हुआ तो उन लोगों ने उन्होंने महसूस किया रूहुल कुद्स को, और रूहुल कुद्स ने उन्हें अनलॉक कर दिया. So if our physical senses is not working, for example, if my ear is not listening, then I will be deaf. If my eyes is not seeing, then I will be blind. In the same way, spiritually also, when the Adam and Eve eat the fruit, they become spiritually blind and they become spiritually deaf. They lose the spiritual grace of spiritual senses. So the Holy Spirit wanted to activate, bring that thing alive, our senses, our spiritual senses. जिस तरह आप जिस्मानी तौर पर, फिजिकली तौर पर देखते हैं, अगर मैं सुन नहीं सकता तो मुझे बहरा बोला जाएगा. अगर मैं देख नहीं सकता, मैं जिस्मानी लिहाज से अंधा होगा. इसी तरह रूहानी तौर पर अगर हम सुन नहीं सकते तो हम रूहानी तौर पर बहरे हैं. अगर हम रूहानी तौर पर देख नहीं सकते तो हम रूहानी तौर पर अंधे हैं. और आप देखते हैं जब आदम और हवा ने क्या किया, फल खाया, तो वो रूहानी तौर पर ब्लाइंड हो गए, रूहानी तौर पर अंधे हो गए. तो रूहुल कुद्स हमें क्या करना चाहता है, दोबारा से वो रूहानी सेंसेस देना चाहता है ताकि हम सुन सके और देख सके. उन चीजों को बहाल करना चाहता है. Hebrews chapter 5 verse 14 says, "But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment," or in the another word, this discernment is a senses, "trained by constant practice of distinguish good from evil." हिब्रू 5:14 खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ. आमेन. इब्रानियों का 5:14 पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है. आमेन. Many times many things are good, but that is not God. बहुत सारे चीज अच्छा होता है, बट वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है. बहुत सारे चीज गुड है. बाइबल ने क्या बोलता है कि द बाइबल सेज दैट व्हेनेवर एडम एंड ईव सॉ द फ्रूट, इट वाज लुकिंग गुड एंड प्लीजेंट टू ईट. जब हम देखते हैं कि आदम और हवा ने देखा उस फल को, वो देखने में अच्छा और खुशनुमा मालूम हुआ, और ना ही इसमें खुदा की कोई मर्जी थी. Many times when you grow in the spirit, certain going and praying for people is good, but many times the Spirit of God said, "Don't pray for this person." काफी दफा आप देखोगे जब आप रूह के अंदर भर जाते हो और आप लोगों के लिए दुआ करते हो, ये अच्छा है, लेकिन बाज़ औक़ात खुदा आपको कहता है कि उस शख्स के लिए या इस शख्स के लिए आपको दुआ नहीं करनी. That many times when you grow in God, when you begin to be matured in your spiritual senses, practicing what God is saying,
what God is saying in your spirit, what God is saying in your spiritual mind, spiritual senses, spiritual ear. And when you begin to hear God, and when you begin to be matured, many times, many other Christian can see certain thing is good, but you can see that you should not be going that way, or you should not be doing that thing. I'll say it in English and Hindi, okay? I'll say the funny story. One time what happened was Prophet Sadhu Sundar Silvaraj got the prophetic message from God that you need to do the conference and such conference in certain place. And he shared that to his team. 1 week before the conference started, his team did everything. They already organized and everything was all set. When he saw that list, he began to cross that so many things. Because he said one thing, they add another 11 programs, 11, 12 programs. We're going to do dancing first. After that, special Ananda Kadhani Huncha. And they add all kind of dance and singing and poetry and poem and everything. So he began to cross everything. He said, God did not told me to add this program. Just put this. We'll do worship and we'll do word of God, and I'll pray for everybody. So God will raise them. God will increase them in his spirit, in his calling. So मैंने क्या बोल रहा हूँ कि एक बार साधु सुंदर सिल्वराज को प्रभु ने कुछ कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोला, तो टीम ने तैयार कर रहा है। 1 हफ्ता पहले साधु जी आया तो बोला कि लेट मी सी क्या क्या आपने तैयार किया। तो जब वो ने लिस्ट दिया साधु जी को, तो साधु जी ने सब क्रश करना शुरू किया। मैंने आपको एक चीज करने के लिए बोला था, आपने 12 प्रोग्राम डाल दिया उधर, डांस करने के लिए, गीत गाने के लिए, पोएम बोलने के लिए, ओके, ड्रामा करने के लिए, बहुत सारे नाटक करने के लिए, सब कुछ जोड़ दिया उधर प्रोग्राम। एंड देन वो ने बोला कि ये प्रोग्राम तो प्रभु ने नहीं बोला था। कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन में प्रोग्राम नहीं भरता है, प्रभु ने एक चीज बोलता है, पवित्र आत्मा से भी ज्यादा स्मार्ट होकर 12 चीज डाल देता हूं। परमेश्वर का जो रू ने बोल रहा है ना, वो उसको ब्लॉक कर देता। आनंद के धानी 5 रोटी 2 मछलियां, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद करके डांस करता है ना, वो भी डाल दिया। उस ऐसा डांसिंग ऑल प्रोग्राम डाल दिया उसने। पोएम का आप आ रहा है पोएम बोलने के लिए, मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ। सो क्या हुआ, वो गुड है, सब चीज गुड है ना, अच्छा है ना, बट वो परमेश्वर ने नहीं बोला था, ये कर बोल के नहीं बोला था। परमेश्वर ने एक चीज बोला था, आपको 12 चीज डाल देता। तो क्या होता, हमारा स्पिरिचुअल सेंसेस में प्रभु ने एक चीज बोलता है और हमने 12 चीज डाल देता है, तो हमारा नजर में अच्छा दिखता है, बट परमेश्वर ने जब देखता है ना, प्रभु को, फ्लो को, और परमेश्वर का रूह ने जो करने जा रहा है ना, वो उसका हम ब्लॉक कर देता है। प्रभु ने किसी को बोलता है कि चर्च को बोलता है कि फास्टिंग बैठो, तो जब वो चर्च को लोग ने क्या करता, 12 चीज डाल देता। वो फास्टिंग में 6 o'clock हम खाना पकाता एंड हम इस तरीका से खाता एंड ये गीत में डांस करता एंड हम, यू सी, सो पीपल आर नॉट सीकिंग गॉड। प्रभु को जिस तरीके से ढूंढना है वो चीज को हम ब्लॉक करना शुरू करता। ओके, फास्टिंग में हम क्या खाना, क्या पकाना, वो चीज में ध्यान जाना शुरू करता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट स्पिरिचुअल सेंसेस क्या है कि जब एक्टिवेट होता है ना, आपने एक चीज पाता एंड आपने वो चीज को जब फॉलो करता ना, प्रभु का नजीक आप और ग्रो होना शुरू करता। जो मंडली, एनी चर्च प्रभु का इंस्ट्रक्शन पाकर वो इंस्ट्रक्शन में फोकस करके वही चीज करता है ना, ज्यादा नहीं डाल के एक्स्ट्रा चीज, दैट चर्च, गॉड विल मूव इन दैट चर्च फ्रीली, मोर एंड मोर एंड मोर। परमेश्वर चाहता है कि हमारा इस आत्मिक की सेंसेस बढ़ नहीं पाए, देखने के लिए, सुनने के लिए, महसूस करने के लिए प्रभु का उपस्थिति, प्रभु क्या बोल रहा है, मैंने क्या करना पड़ता है, वो महसूस करने के लिए। एंड जब हमारा वो सेंसेस बढ़ता है ना, तो क्या होता, हम जीवन में सफल होना शुरू करता हर चीजें में। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने कुछ आइडिया दिया था आपको, आपने नहीं किया वो आइडिया, किसी ने वो आइडिया 2 month 3 month के बाद कर लिया, वो ऊपर जा रहा है एंड आप नहीं जा रहा है, एंड आपको लगता है कि ये आइडिया तो मेरे दिया था खुदा ने, तो ये पर्सन ने कर दिया तो ऊपर जा रहा है। सो यू सी, सो मेनी टाइम गॉड गिव सर्टेन थिंग इन आवर स्पिरिट, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सेंसेस। ओके, सो दिस जस्ट द फाउंडेशन बैठाने के लिए मैंने ये बोल दिया। ओके, लेट्स गो टू द स्पिरिचुअल सेंस ऑफ हियरिंग। स्पिरिचुअल सेंस ऑफ हियरिंग, हम जाते हैं स्पिरिचुअल सेंस जो सुनने का होता है, हम उस पर बात करेंगे। Genesis chapter 8 and 9 says,
they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? और पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत लिखा, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। Sister Asmita. उत्पत्ति 3 8 र 9। अनि साँझ पख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, त कहाँ छस्? आमेन। 1 Samuel chapter 3 verse 4 and 5 says, And the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou callest me. And he said, I call not. Lay down again. And he went and lay down. Okay. पहला सैमुएल उसका 3 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत लिखा, तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। और वो दौड़ कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। आमीन। पहिलो सामुएल 3:4 र 5। तब परम प्रभुले सामुएललाई बोलाउनु भयो। सामुएलले जवाब दिए, म यही छु। अनि दगुरेर एली कहाँ गएर तिनले भने, तपाईले मलाई बोलाउनु भयो? म यहाँ छु। तर एलीले भने, मैले तलाई बोलाइन, जा गएर सुत। तब तिनी गएर सुते। आमेन। When God speaks, He speaks through many things. Many things. Sometimes you hear the thunder. Sometimes you hear the rain is coming. That time, many times God is saying, my spirit is coming, my anointing is coming upon you, or something like that. Or many times you hear certain thing. Not only that necessarily you hear the voice, but God talked in the various way, and that all are the voice of God. The Adam and Eve, they heard the voice walking in the garden. So many times what happens is when your spiritual senses open, it's very different thing. You will know when God is walking. You will know. Or when God is talking, you will hear in the different way. And you need to sit and meditate. Many times when God talk, you need to sit and meditate what God is saying. For example, you are sleeping and many times God is talking in your spirit. And you think that it is just my thought, but it's not. Is many times God is talking. I will make you rich. I will take you to the nations. I will make you a great person. You become very successful. All people will see you as a role model. All people will see you as what God can do through nobody. Through nobody. How God can take them far. Right? God can talk in their spirit. So many times when God talk in the various way. And many times we don't know how God is talking. That is the reason I will tell you how to activate and how to sharpen to understand when God is talking. Okay? मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे टाइम जब प्रभु बोलता है तो हमने कभी कभी नहीं जानता है कि प्रभु किस तरीका से बोलता है. ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं बोलता है. फॉर एग्जाम्पल एक सामुएल के पुस्तक में पहला उसको सामुएल बोल के बुलाया प्रभु ने. बट जब आपने उत्पत्ति के पुस्तक में देखता है तो उसने परमेश्वर का आवाज आते हुए बैक से परमेश्वर का आवाज चलते हुए सुना. परमेश्वर का आवाज और परमेश्वर चलते हुए सुना. आप जब कभी कभी सो रहा होता है एंड आपको लग रहा होता है कि आपको स्पिरिट में आपको ऐसा आ रहा है, प्रोफेसी आ रहा होता है कि मैं तेरा अभिषेक करता हूं. मैं जो चीज कुछ भी नहीं है, आपको लोग ने कुछ भी नहीं देखा है, बट ये कुछ भी नहीं से मैं कुछ महान चीज करने जा रहा हूं आपके जीवन से. बहुत सारे लोग ने आपको नहीं समझ रहा है, बट मैं आपको ऐसा व्यक्ति बनाता हूं जो व्यक्ति को लोग ने रिग्रेट करे कि इसको मैंने आई विश मैं इसको अच्छे से ट्रीट करना पड़ता था वो टाइम, बट मैंने इसको बहुत व्यवस्था कर दिया.
बट नाउ इसके जीवन से इतना भलाई का काम हो रहा है, महान काम हो रहा है, ये इसका जीवन इतना ऊपर जा रहा है, राइट। सो परमेश्वर ने आपको मन में, स्पिरिट में बोलना शुरू करता, प्रभु ने क्या करने जा रहा है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब परमेश्वर चाहता है कि आपको वो आत्मिक सेंसेस ओपन होने पाए, आत्मिक सेंसेस, आपका सुनने का सेंसेस परमेश्वर ने खोलने पाए, ताकि आपका आत्मा में प्रभु बोलना शुरू करता, प्रभु बोलना शुरू करता। कभी कभी आप वचन पढ़ रहा होता तो प्रभु ने बोलता है कि इधर रोको, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ बताने जा रहा हूँ। एंड जब आपने फिर वही वचन फिर दोबारा पढ़ता है तो प्रभु बोलना शुरू करता है आपके स्पिरिट में वो चीज से, यू सी। एंड आपको लगता है कि किसी ने बता रहा है आपको, ये कान से नहीं, आपका स्पिरिचुअल ईयर से कुछ बोल रहा है, आप कन्वर्सेशन कर रहा है, आपने सुन रहा है, राइट। इसलिए स्पिरिचुअल सेंसेस, सुनने का सेंसेस बहुत डिफरेंट है। नॉट एवरी टाइम ये नहीं है कि प्रभु ने हर समय ऑडिबली बोलता कि मिनिस अस्मिता बोल के, कभी कभी नहीं बोलता, बट को आपको रूह में प्रभु बोलना शुरू करता, आपका स्पिरिट में। सो इसलिए आप, प्रभु चाहता है कि आपका वो स्पिरिचुअल सेंसेस, सुनने का सेंसेस प्रभु खोलना चाहता है। कभी कभी तो क्या भी कर देता है कि आपको जैसा दरवाजा में ऐसा मारना शुरू करता ना, उस तरीका से आपको हृदय में मारना शुरू करता खुदा ने, क्यों जा रहा है, नहीं जा, नहीं कर। एंड देन क्या होता, जब आप प्रभु ने जो बोल रहा है वो नहीं सुनता है ना, तो क्या होता है कि वो सुनने का रेलम हमने क्लोज कर देता। एंड बाद में 2 महीने हुआ, 1 महीने हुआ, मैं बहुत रिग्रेट हो रहा हूँ जीवन में, बहुत डाउन जा रहा हूँ, क्या हुआ। एंड देन आपने कभी कभी रियलाइज नहीं करता कि प्रभु मेरे हृदय में बोला था, स्पिरिट में क्लियरली बोला था, मैंने ये नहीं करना है और ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, you see। and then when God begin to talk, right, and when you don't listen, later you regret। यही हुआ आदम एंड ईव को जीवन में। प्रभु ने कुछ बोला था एंड देन वो ने शैतान को जाकर सुन लिया। जब उसको सुन लिया ना, रिग्रेट होना शुरू किया। बाद में प्रभु ने क्या बोला था, सब चीज सरप्राइज होना शुरू किया। एंड उसका जब सरप्राइज प्रभु ने जो बोला था ना, उसको नीचे होना शुरू किया प्रभु का आवाज, तो शैतान का आवाज बड़ा होना शुरू किया, तो शैतान का आवाज वो ने फॉलो करने लगा। तो क्या हुआ, बाद में रिग्रेट हुआ। हालेलुया। So next thing we are going to talk about is activating the sense of touch। दूसरा अब हम बात करेंगे उस सेंस के बारे में, यानी छूने के बारे में, टच करने के बारे में। Touch is connected to the feeling। जो ये छूने का सेंस है, ये फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, महसूस करने के साथ जुड़ा हुआ होता है। So many time when we pray and many time when God comes in your room or when the angels come in your room, you feel it। काफी दफा जब हम दुआ करते हैं और खुदा हमारे कमरे के अंदर आता है या फरिश्ते हमारे रूम के अंदर आते हैं, तो हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। And when you begin to feel the presence of God, and if you wait many times, God is not saying anything, you don't feel like praying, but you have to stay there and you feel the presence of God. And more you stay, more lot of weakness in your body, lot of sickness in your body, lot of weakness, sinful weakness or the sickness in your body, presence of God begin to heal. By the spiritual feeling you feel the presence of God, and if you stay in that presence, God begin to heal your body। काफी दफा जब आप दुआ नहीं करते लेकिन आप खुद को ठहराते हैं खुदा की हजूरी के अंदर, खुदा की प्रेजेंस के अंदर, और आप महसूस करते हैं उस खुदा की हजूरी को, और आपके अंदर जो गुनाह की कमजोरी होती है या आपके अंदर बीमारियां होती हैं, तो रूहानी एतबार से खुदा की हजूरी, खुदा की प्रेजेंस आपको उनसे रहाई या आपको उनसे शिफा दे रही होती है। I will read Mark chapter 5 verse 25 to 34। A certain woman, which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse, when she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague.
And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked round about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came, and fell down before him, and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. मरकस की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर हम रीड करेंगे। देखा, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सारा माल खर्च करके भी उसको कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यस्सु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफोर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यस्सु ने फिलफोर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गीली पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची जा। मर्कुस 5 को 25 देखि 34 सम्म। अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री त्यहाँ थिए। त्यसले धेरै वैद्यहरूका हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन खराब हालतमा पुगेकी थिए। येशूको विषयमा त्यसले सुनेकी थिए र भिडको पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्र त्यसले छोए, किनकि त्यसले मनमा नै भने, मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोए भने पनि म निको हुनेछु। अनि तुरुन्त त्यसको रगत बग्ने बन्द भइहाल्यो र आफ्नो शरीरको रोग निको भएको त्यसले थाहा पाए। आफूबाट शक्ति भएर निस्केको झट्टै यसुले थाहा पाएर भिडमा पछिल्लोतिर फर्केर सोध्नुभयो, कसले मेरो वस्त्र छोयो? चेलाहरूले उहाँलाई भने, भिडले ठेलामठेल गरेको त तपाईले देख्नु भएकै छ र पनि तपाई भन्नुहुन्छ कसले मलाई छोयो? उहाँलाई छुने को हो भनी उहाँले चारैतिर हेर्न लाग्नुभयो। तब आफूलाई जे भएको थियो सो थाहा पाएर त्यो स्त्री डरले काम्दै आएर येशूको अघि घोप्टो परी र उहाँलाई सबै सत्य कुरा भनिदिए। ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्ति साथ जाऊ, तिम्रो रोग निको होस्। आमेन। I will say a little bit in Nepali. 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्री थिइन् अनि उसले प्रभु येशूलाई छुइन् र प्रभु येशूलाई छुने बित्तिकै प्रभु येशूबाट केही शक्ति गएको प्रभु येशूलाई अनुभव भयो। अनि येशूले के भन्नुभयो? मबाट शक्ति गएको अनुभव भयो अथवा मलाई महसुस भयो। कसले मलाई छुयो भन्न खोजेको प्रभु येशूमा कसैले मलाई छुयो भने आत्मिक रूपमा अथवा त्यो फिलिङ, आत्मिकी त्यो अनुभव महसुस गर्ने कुरा प्रभु येशूसँग त्यो वरदान, त्यो अनुग्रह भएको कारणले गर्दा प्रभु येशूले थाहा पाउनु भयो कि कसैले मलाई छुयो अनि मबाट शक्ति गयो। कतिचोटि के हुन्छ भने कोही व्यक्तिले मलाई प्रार्थना गर्दै भन्छ अनि तपाईले त्यसलाई प्रार्थना गर्दिन आर्दाखेरि कोही बेला तपाईको ढाड दुख्न थाल्छ। तपाईलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ कि यो व्यक्तिको ढाड दुखिरहेको छ भनेर। यदि तपाईँ आत्मिक रूपमा म्याच्योर्ड हुनुभयो भने तपाईँलाई थाहा छ कतिचोटि मानिसहरू डिप्रेसनमा गइरहेको छ भने उसको छेउमा जानुभयो भने तपाईँ आत्मिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँले पनि डिप्रेसन महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो के हो भने कतिचोटि तपाईँले आत्मिक महसुस गर्ने शक्ति, महसुस गर्ने एबिलिटी तपाईँको खोलिएको, येशूले महसुस गर्नुभयो कि शक्ति गएको, त्यो थियो फिलिङ। उहाँले कसैले छुयो भने उहाँबाट शक्ति गएको उहाँले महसुस गर्नुभयो। धेरै मान्छेले छुइरहेको थियो, इभन चेलाहरूले पनि भने कि सबैले छुइरहेको छ, तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने चेलाले भन्यो। तर होइन, एउटा स्त्रीले मलाई छुएको छ अथवा कसैले मलाई छुएको छ। त्यो छुवाई चाहिँ के थियो भने आत्मिक रूपमा विश्वासको साथ प्रभु येशूलाई छुएको थियो। अनि जब आत्मिक रूपमा विश्वासको साथ छुयो नि तब त्यो व्यक्ति चङ्गाई भयो। त्यही भएर कतिचोटि मण्डलीमा के हुन्छ, सबैजना मान्छे आउँछ, सबैले हालेलुया गरिरहेको हुन्छ, कोही झिस्किरहेको हुन्छ, कोही के गरिरहेको हुन्छ, कोही के गरिरहेको हुन्छ, तर तपाईँलाई थाहा हुन्छ, तपाईँलाई महसुस भइरहेको हुन्छ प्रभुको उपस्थिति।
अनि तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ के भएर मानिसहरूलाई प्रभुको उपस्थिति नै महसुस नभएको। कतिचोटि कोही व्यक्तिले जय मसीह भन्ने बित्तिकै तपाईँको आत्मिक रूपमा यो व्यक्तिलाई सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, तर कोही व्यक्तिले जय मसीह भन्ने बित्तिकै तपाईँको आत्मामा थाहा भइरहेको हुन्छ यो व्यक्तिलाई मैले सुन्नु हुँदैन भनेर अलरेडी। जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि तपाईँको प्रार्थनै खत्तम, प्रार्थनै तपाईँको डाउन हुन्छ। अनि पछि तपाईँले त्यो मान्छेको कुरा सुन्दै जानुभयो भने थाहा हुन्छ त्यसले अन्य भाषाको विरोध गर्दो रहेछ, प्रोफेटिकको विरोध गर्दो रहेछ, अभिषेकको विरोध गर्दो रहेछ, थाहा हुन्छ। कतिजना मान्छेको मैले नेपालीहरूको गीतहरू जब सुन्थेँ नि यो व्यक्तिको सुन्नु हुँदैन भन्ने कुरा अलरेडी थाहा हुन्थ्यो। सबै ट्र्यासमा हालिदिन्थेँ मैले, ट्र्यासमा भनेको सबैलाई मैले इग्नोर गर्थेँ। अनि कुनै म्यान अफ गडहरू हुन्छ नि, अथवा अफ्रिकाको प्रभुको दासहरू जहिले पनि त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि इन्डियाको कुनै प्रभुको छोरीहरूलाई सुन्थेँ। एकजना जोन पर्सिस भन्ने, म जहिले पनि उहाँको तारिफ गर्छु। एक जोन पर्सिस है, उसको मैं एवरी टाइम तारीफ करता हूँ। उसने एक आओ मिल के स्तुति करेंगे यीशु के गुणगान करेंगे करके वो ने एक वर्शिप गा रही थी। तो मेनी टाइम हमारा जीवन में क्या होता है कि जो ये फीलिंग का बात होता है ना, आत्मी की महसूस का बात, जब यीशु को एक लड़की ने छुई तो यीशु ने जान लिया कि मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ, मुझे विश्वास के साथ छुआ और मेरे जीवन से शक्ति निकल के गया, अभिषेक निकल के गया। तो अभिषेक क्या है कि महसूस करने वाला चीज है। जब जिसके जीवन में आत्मी की महसूस करने वाला एबिलिटी और वो क्षमता अनलॉक नहीं हुआ होता है ना, वो उसने क्या करता है कि प्रभु इन्हें ऐसा नहीं छूता, प्रभु ने ऐसा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता बोलता। जो लोग ने किसी के विरोध करता ना कि प्रभु ने भी ऐसा करता, प्रभु ने भी ऐसा करता, क्यों ऐसा कर रहा है, प्रभु ने नहीं छूता, इस तरीके से बोलने जो लोग ने विरोध करता ना, वो उसके जीवन से कभी भी चंगाई, छुटकारा, अभिषेक का काम नहीं हो रहा होता है। क्योंकि वो उसका आत्मिकी महसूस करने वाला क्षमता, महसूस करने वाला एबिलिटी क्या हुआ है, बन हुआ है। क्योंकि हम सब पाप में जन्म हुआ है, इसलिए जब यीशु में आने के बाद सब रिस्टोर होते होते जाना पड़ता। पवित्र आत्मा आने के बाद, पवित्र आत्मा को रिसीव करने के बाद हम अन्य भाषा में रा बा 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 रे बे 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 ओ थैंक यू जीसस रो सो ठो रोबो करके एक्टिवेट करके आत्मा में और अभिषेक बढ़ाकर हमने परमेश्वर का बहुत सारे हमने घुमाया हुआ जितना भी अभिषेक है ना, वो रिस्टोर करना शुरू करना पड़ता हमने हमारे जीवन में। किसी को आपने जब सुनता है, जब किसी ने बहुत गा रहा होता है, वचन बोल रहा होता है, तो जब फर्स्ट टाइम ही आपको स्पिरिट में लगता है कि इसको नहीं सुनो, प्रभु ने कभी कभी आपको स्पिरिट में बोलता है। एंड जब आपने उसको सरप्राइज करके सुनता है ना, आपका वो महसूस करने वाला एबिलिटी बंद होना शुरू करता, आप आत्मिक के रूप में आपका डिग्रेड होना शुरू करता। इसलिए आपका ये महसूस करने वाला एबिलिटी प्रभु ने एक्टिव करना चाहता हमारे जीवन में। प्रभु चाहता है कि सबका महसूस करने वाला प्रभु का महसूस, प्रभु ने क्या हमारे जीवन में सिग्नल दे रहा है ना स्पिरिट में, वो महसूस करने वाला एबिलिटी प्रभु चाहता है कि रिस्टोर करना चाहता। महसूस हुआ है कि हैवीनेस, कुछ बैड होने जा रहा है, जब दुआ करना शुरू करता आपके जीवन में आराधना का गीत आना शुरू करता है, तो आपने विजय पाया वो चीज से। बट आपके जीवन में जब तक आराधना का गीत नहीं आता है ना, वो बुराई चीज जो होने वाला है ना, जो आपने महसूस कर रहा है ना, वो चीज होता ही है। परमेश्वर ने फ्री विल देता सबको। कुछ भी चीज प्रभु ने अनलॉक करता ना, आपने उसको नेग्लेक्ट कर देता है ना, नेक्स्ट टाइम यू डोंट फील अगेन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पाप करने जा रहा है एक जवान, अब तो बूढ़ी बूढ़ा सब ने पाप तो एक नेचर है, लोग को किसी ने भी कर सकता, राइट। जवान ऐसा करता, जवान ऐसा करता। बट वही पास्टर लोग जब गाड़ी में चला रहा होता है ना, सब लड़की का बात कर रहा होता था। ओह माय गॉड, वो लड़की ने ऐसा कपड़ा पहनी थी, मुझे तो ऐसा लगा कि वो लड़की को गीत सुनना, आराधना का गीत सुनना कि वो लड़की का पैर देखना। दैट मीन्स वो पास्टर का माइंड इतना गंदा है। अदर लड़की ने छोटा कपड़ा लगाया तो उसको प्रॉब्लम होता, बट उसका बेटी ने नंगे होकर चलते हुए प्रॉब्लम नहीं होता। दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग इज उसका माइंड ही गंदा है। मुझे कुछ चीज देखकर रिस आता है, तो एंगर होता है, तो प्रॉब्लम मेरे साथ है, उसके साथ नहीं है। यू सी, अगर किसी ने मुझे चोर, फटा, कुत्ता बोल दिया तो, और मुझे टेंशन, एंगर होता है, तो प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है, मेरे साथ है। क्योंकि वो कुत्ता बोल के सबको चल रहा है। बट प्रॉब्लम मेरे साथ है, क्योंकि वो ने जब कुत्ता बोला तो मुझे एंगर हुआ ना, तो प्रॉब्लम मेरे साथ है। नेपाली में कहावत है कि अदर पीपल को परिवर्तन कर नहीं सकता आपने,
बट खुद ही को परिवर्तन कर सकता। व्हेन आदम एंड ईव ने प्रभु को फीलिंग, मन में डर आ रहा था, मैं ये नहीं खाता हूं, बट शैतान को और सुना ना, वो डर, परमेश्वर के तरफ का डर भाग गया। नेक्स्ट टाइम उन्हें अच्छा तरीका से खाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे मैन ऑफ गॉड को देखा, बहुत सारे बिग मैन ऑफ गॉड, अच्छा मैन ऑफ गॉड, अभिषिक्त मैन ऑफ गॉड भी पाप में गिर रहा होता है एंड डर हट गया होता है। एंड ये डिफरेंट टॉपिक है। एनवाइंटिंग अपॉन यू, एनवाइंटिंग आपके ऊपर आना और आपके अंदर आना डिफरेंट चीज है। एक मैन ऑफ गॉड ने उसका जीवन में सपना में लड़की आकर उसके साथ सोता हुए देख रहा होता। मैंने बहुत सारे काउंसलिंग भी किया हूं, प्रोफेसी भी किया हूं, दुआ भी कर दिया डिलीवरेंस मिनिस्टर का। अभी भी उसने फायर करके लोग को डिलीवरेंस कर रहा है। बहुत सारे लोग आता था मेरे साथ, तो उसने फायर करता, सब जूम का लोग डिमोन कास्ट आउट हो रहा है। वो क्या है कि एनवाइंटिंग अपॉन यू, सेवकाई का अभिषेक जब आपके साथ आता, तो आपने लोग को जीवन में जब देखता ना बीमार, आपका वो अभिषेक स्टेयर अप होता। तो आपने दुआ भी नहीं कर रहा था, क्यों अभिषेक फीलिंग हो रहा है? क्योंकि वो सेवकाई का अभिषेक है। जो परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए चुन लिया है ना, आपने प्रभु का हाँ बोल दिया है ना, वो अभिषेक, सेवकाई का अभिषेक। सो कभी कभी आपके जीवन में आप कमजोर होता भी लोग को जीवन में सेवकाई दे सकता, लेकिन क्या होता है कि आप खुद ही का जीवन में आप हार रहा होता, आपके जीवन में शांति नहीं होता, आनंद नहीं होता। वो मैंने के आजू बाजू में आप जाओ, बहुत एंगर होता, आपको लगता है कि आप तो प्रभु का दास है, आप तो शैतान से भी बड़ा एंगर करने वाला बन गया। क्या हुआ? क्योंकि वो उसके जीवन में क्या हुआ, खुद ही के जीवन में वो हार रहा है। हमारा फीलिंग, वो मैन ऑफ गॉड ने क्या करना शुरू किया, उसका फीलिंग को नहीं जीत लिया। प्रभु ने जो बोल रहा था ना कि ये चीज नहीं करो, वो चीज नहीं करो, वो चीज उसने कर लिया। इसलिए कभी कभी पहले ही जो बोला था ना वो नहीं सुना, तो अब तो बहुत दूर आ गया वो एंगर होके और पाप करते करते और पाप में गिरते गिरते लंबा बहुत दूर आ गया। तो अब प्रभु भी बोल नहीं सकता उसके साथ कि ये नहीं कर, और चीज बोल सकता, हर व्यक्ति के लिए बोल सकता, सबके प्रोफेसी दे सकता प्रभु ने, बट उसका खुद ही के लिए जो प्रभु ने बोल रहा है ना, सुनना छोड़ दिया। यू सी, सो दैट्स व्हाई मैं क्या बोल रहा हूं कि फीलिंग जब एक्टिवेट होता है ना, बी वेरी केयरफुल कि जो प्रभु ने एक बार बोलता है, प्रभु ने फ्री विल देता है। जब आपने उसको क्विंच करके कुछ भी करता है तो फिर वही चीज प्रभु नहीं बोलता एंड आप खुद ही विनाश में जा रहा होता। दैट्स हाउ गॉड वर्क। सबा रखा जो सेलेबे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा सिस्टर सोजेनिया जो कमेंट कर रही है, वो ने एक बार उसका फीलिंग एवरी टाइम दुआ करने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए उसका फीलिंग आ रहा था, वो आत्मा में बढ़ रही थी। तो एक बार क्या बोली कि उसने सीरियल नाइट में टीवी है ना शुरू की, सीरियल, फैमिली सीरियल, अच्छा ही सीरियल। तो बाद में क्या हुआ, दुआ करने के मन भी चला गया, सब चला गया, तो उसको सेंसेस, प्रभु का उपस्थिति, फीलिंग होने वाला चीज चला गया। सो नेक्स्ट टाइम सी स्ट्रगल इवन टू प्रे, एंड मैंने उसको दुआ कर दिया एंड फिर वो आत्मा में प्रज्वलित हुई। वो फिर आत्मा में प्रज्वलित हुई। किसी का हृदय पत्थर का हो गया है, मांस का नहीं, देयर हार्ट इज hardened। एंड अनदर एक वचन दूसरा तवारीख उसका 5 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदावन की हम्द और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे, और जब नरसिंगों और जानजों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके खुदावन की सितारिश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है, तो वो घर जो खुदावन का मस्कन है अबर से भर गया, यहाँ तक के काहिन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदा का घर खुदावन के जलाल से ममूर हो गया था। दोस्रो इतिहास 5:13-14। तुरै बजाउनेहरू र गीत गाउनेहरूले परमप्रभुको प्रशंसा र धन्यवादको निम्ति एक स्वर गरी आवाज निकाले, अनि तुरै, झ्याली र अरू बाजाहरूसित परमप्रभुको प्रशंसा गर्नलाई तिनीहरूले यसो भनेर गीतको आवाज निकाले, उहाँ असल हुनुहुन्छ किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। तब परमप्रभुको मन्दिर बादलले भरियो, अनि बादलले गर्दा पुजारीहरूले सेवा गर्न सकेनन् किनकि परमेश्वरको मन्दिर परमप्रभुको महिमाले भरिएको थियो। आमेन। परमेश्वर का महिमा आया, परमेश्वर का महिमा का बादल आया, तो ये पुजारी ने पूजा करना नहीं सका, आराधना करना नहीं सका। आराधक ने गीत गा रहा था, प्रशंसा कर रहा था ना प्रभु का, तो परमेश्वर का महिमा आया। तो परमेश्वर का महिमा आने के बाद क्या हुआ, वो गीत गाना नहीं सका, कुछ भी करना नहीं सका, प्रभु का महिमा ने स्लेन हुआ, महिमा ने उसने
गिर गया। परमेश्वर का महिमा जब आया ना, वो अभिषेक में वो रहना नहीं सका। कोई कांपने लगा, कोई रोने लगा, थिंग्स लाइक दैट। सब ये एक्सप्लेन नहीं किया है, बट ये कॉमन सेंस है। जो लोग आत्मिक है ना, आत्मिक एक्सपीरियंस किया है ना, ये कॉमन सेंस है, ये बहुत कॉमन सेंस है। बट जो लोग अनात्मिक है ना, वो नहीं जानता, वो नहीं जानता। वो नहीं बोलता कि ये लोग क्यों गिर रहा है, लोग क्यों रो रहा है, लोग क्यों हंस रहा है, बोलता है। बट जो लोग परमेश्वर का अभिषेक जानता है ना, वो लोग के लिए कॉमन सेंस है, ये सब एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ता बाइबल में। इसलिए वो नहीं बोलता है कि परमेश्वर का जब महिमा आया ना, सब गीत गाना ही छोड़ दिया, कुछ भी करना छोड़ दिया, पुजारी ने भी पूजा करना छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति ने आखा बा सोठा ला बा 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 बा। कभी कभी क्या होता, आप दुआ कर रहा होता, परमेश्वर का अभिषेक आने लगता, तो आप दुआ भी कर नहीं सकता। कभी कभी जस्ट प्रभु का उपस्थिति में कभी कभी रोने लगता, कभी कभी हंसने लगता। परमेश्वर का आनंद का अभिषेक आता कभी कभी, क्योंकि बाइबल ने भी बोलता है कि आनंद का अभिषेक है। तो जब परमेश्वर का आनंद का अभिषेक आता, हंसने लगता, आनंदित होता। शारीरिक क्रिश्चियन ने नहीं जानता क्या हुआ। जब मैं नेपाल में था, मैं 12 साल का था, मैं चर्च में जाना शुरू किया। चर्च में जस्ट भागते भागते घर से जाना शुरू किया, क्योंकि मुझे चर्च जाने के लिए जब बहुत मन आता था तो जाना शुरू किया। जो क्रिश्चियन मेरा दोस्त मेरे साथ जाता था ना चर्च, वो भी जाना छोड़ दिया। वो बहुत सारे दोस्त छोटा उम्र से ही उसने गांजा पीना शुरू किया, उसको डेनराइट बोलता था, वो प्लास्टिक में रखा देना शुरू किया। तो वो लोग छोटा उम्र से ही गलत रास्ता में जाना शुरू किया। बट मैं चर्च में जाना शुरू किया, क्योंकि मुझे प्रभु का उपस्थिति। जब मैं 1 मंथ का क्रिश्चियन था ना, ड्रीम में, सपना में पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलते हुए सपना देखता था। जब मॉर्निंग में जागता था, मैं ऐसा होता था, तो मैंने घर को किसी को भी बताना नहीं सकता था। एंड देन बाद में जब चर्च में गया तो मैंने अन्य भाषा बोलना शुरू किया। एंड क्रिश्चियन लोग ने ऐसा करता है, मुझे पता नहीं था। क्रिश्चियन लोग ने क्या करना शुरू किया कि तू तो स्टाइल कर रहा है, नकल कर रहा है तूने, तो क्योंकि तेरे पास पानी का बपतिस्मा भी नहीं है, तो कैसे तूने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? बाउन बोला मुझे। बाउन मीन्स ब्राह्मण। पवित्र आत्मा ने ऐसा शांति देता था ना मुझे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता था। वो क्या बोलता है, ये अमेरिका में आया ना, तो मेरा परिवार अलौकिक रूप में प्रभु में आया। जब जब मैंने दुआ कर देता था ना, वो चंगाई हो जाता था, जो भी बीमार से। एक बार मेरा माँ क्या हुआ कि स्नो का टाइम था, तो स्नो के टाइम में वो स्लिप होकर गिर गई, तो उसका पैर कुछ समय में ऐसा स्वेलिंग होने लगा, एंड वो चलने के लिए भी नहीं सक रही थी। तो मुझे महसूस हुआ, अभिषेक महसूस हुआ कि उसका हाथ रखकर दुआ करो। अभिषेक महसूस हाथ में, सब शरीर में। ये मेरा ऐसा बोल्डनेस था कि वो टाइम मैं दुआ कर देता था ना, उसको बोलता था चलो चल के दिखाओ। उसका पैर विदिन 5 मिनट ऐसा स्वेलिंग हो रहा है, उसका पैर सब अच्छा हो गया, वो चलने शुरू की। सो प्रभु ने जो भी मैंने दुआ करता था ना, वो टाइम सबको उत्तर देता ही था प्रभु ने। मैं इंग्लिश नहीं बोलता था, तो मैंने बोलता था खुदा मुझे इंग्लिश बोलने के लिए सहायता करो प्रभु। मैं इंग्लिश जब बोलता हूँ ना, गर्लफ्रेंड नहीं बनाता हूँ, बट मैं ये इंग्लिश से मैं स्कूल में अच्छा पढ़ाई करता हूँ, बोलता था मैंने। तो प्रभु ने इंग्लिश अलौकिक रूप में देता था, इट्स लाइक एनवाइंटिंग फीलिंग होता था। तो जब मैं बोलता था ना, फ्लुएंटली इंग्लिश आना शुरू किया। बाद में हिंदी में भी ऐसा ही हुआ, हिंदी में भी हिंदी नहीं जानता था, राइट। तो जब जितना भी इंटरप्रेटर रखता था ना, वो इंटरप्रेटर आना ही छोड़ता था। कभी कभी मैं इंग्लिश से बोलता था एंड देन इंटरप्रेटर रखता था ना, इंटरप्रेटर आना छोड़ता था। तो प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे नेक्स्ट टाइम मैं हिंदी में प्रचार करता हूँ। तो जब मैं हिंदी में प्रचार करना शुरू किया ना, शुरू में मैं बहुत स्टमरिंग होना शुरू किया, बाद में हिंदी फ्लुएंटली आना शुरू किया। एंड बहुत मेरा गवाही भी है कि बहुत सारे पाकिस्तानी उर्दू बोलता है, बट जब मेरे साथ 1-on-1 करता ना, वो नहीं बोलता आपने उर्दू कैसे ऐसे जाना, क्योंकि जब मैं उर्दू के साथ बोलता हूँ ना, विदाउट नोइंग मैं उर्दू बोल रहा होता हूँ, मुझे भी पता नहीं होता है, क्योंकि मैं इंडिया में रेज नहीं हुआ हूँ ना। 14 वर्ष में अमेरिका आया हूँ, एंड नेपाल में भी ऐसा प्लेस में मैं रेज हुआ जहाँ नेपाली भी अच्छा नहीं बोलता, हिंदी भी अच्छा नहीं बोलता, इंग्लिश भी अच्छा नहीं बोलता, भैया भाई टाइप का कोई भी अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं बोलता था ना। जब प्रभु का उपस्थिति फीलिंग होता है ना, जो चीज आप अचीव करना नहीं सकता ना, वो अचीव करना शुरू करता। हालेलुया। जो चीज अचीव करना नहीं सकता, वो बोल्डनेस, सुपरनेचुरल बोल्डनेस आना शुरू करता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दैट्स व्हाई प्रभु चाहता है कि एवरीडे हम वो सेंसेस में ग्रो हो जाए। कभी कभी आपको मॉर्निंग में जागकर पढ़ने के लिए मन नहीं आता, जब प्रभु का उपस्थिति ने आपको एक्टिवेट कर देता ना फीलिंग, ऑटोमेटिकली पढ़ाई में ध्यान जाना शुरू करता। आपका पढ़ाई में बहुत ध्यान जाना शुरू करता, बहुत एक्टिवेट, आपको एक्साइटेड लगना शुरू करता। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ आपको भी पता नहीं है, बट आप पढ़ना शुरू करता।
आत्मिक स्मेल, आत्मिक सूंघना, क्या बोलता, सूंघना। किसी के जीवन में मौत आ रहा है, डेथ, मरने जा रहा है कोई, कभी कभी वो घर में जब जाता है ना, आपने डेथ स्पिरिचुअली स्मेल करना शुरू करता। कुछ लोग व्यभिचार में गया है ना, तो जब आपको नजीक वो आना शुरू करता ना, आपको क्या स्मेल आता है, एंड आपको फिजिकली आ रहा है कि स्पिरिचुअली आ रहा है आपको पता भी नहीं होता है, एंड देन किसी को भी बदर नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको बदर हो रहा है उसका स्मेल से। क्या स्मेल है वो आप भी नहीं जानता, वो शारीरिक स्मेल नहीं है, किसी भी लोग ने नहीं जाना, सिर्फ आपने जानता है। तो ऐसा होता है। एंड कभी कभी आपने कुछ भी चीज नहीं है उधर, फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ भी परफ्यूम नहीं है, बट आपने परफ्यूम का स्मेल करना शुरू करता। वो क्या है कि एंजल का उपस्थिति, प्रभु का उपस्थिति आपने महसूस करना शुरू करता स्मेल के जरिए। ओके, लेट मी गो टू द स्पिरिचुअल साइड, देखने, आत्मिक के रूप में देखने के लिए यूहन्ना का पुस्तक 5:19। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। आमीन। यूहन्ना 5:19। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, पुत्र आफैले केही गर्न सक्दैन, तर पिताले जे गर्नु भएको देख्छ त्यही मात्र गर्छ, किनकि पिताले जे गर्नुहुन्छ पुत्रले त्यसै गर्छ। आमेन। सो प्रभु यीशु ने जो देखता था ना स्पिरिट में, वही करता था, वही करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब लाजरस मर गया ना, तो प्रभु यीशु ने नहीं देखा कि उसको अब दुआ करे, वो नहीं देखा, तो उसने बोला कि मैं वेट करता हूँ, वेट करता हूँ। वो क्या कर रहा है, वो दुआ कर रहा है, पवित्र आत्मा को वेट कर रहा है। कभी कभी क्या होता, आपने देखता है स्पिरिट में कि मैंने इसको दुआ करता हूँ ये चंगाई हो जाता, तो आपने दुआ करता, हाथ रखता, तो वो चंगाई हो जाता। एंड किसी किसी के जीवन में फिर नहीं देखता स्पिरिट में, कि महसूस नहीं होता, फीलिंग नहीं होता कि इसके दुआ करो। एंड जब आपने दुआ करता ना, क्या होता, आपको डिस्करेज होता, डिस्करेज, आपको निरुत्साहित होता आप, क्योंकि आपने जो देखा और फीलिंग नहीं हुआ ना स्पिरिट में, वही कर दिया। इसलिए आत्मा में चलने के लिए पहला का जो एक्सपीरियंस है ना, वही एक्सपीरियंस आज के दिन में नहीं डालना। कभी कभी बड़ा बड़ा मैन ऑफ गॉड भी ये चीज में गिरता है। वो क्या है कि प्रभु ने यस्टरडे क्या दिखाया और क्या किया, वही एक्सपीरियंस में आज के दिन भी वही कर रहा होता। कभी कभी रिजल्ट भी मिल रहा होता। 2:17 से लेकर 19 तक जब आप देखता है, तो उधर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उसका रूह सब में डाल देता है, तो लोग ने सपना, दर्शन वगैरह वगैरह देखना शुरू करता। कभी कभी आपने आपका दांत गिरते हुए देखता, वो क्या है कि एक रिग्रेट होने वाला है आपके जीवन में, जो डिसीजन ले रहा है, और जो आपने कुछ गलती कर रहा है, तो वो गलती बार बार किया, तो आपको जीवन में रिग्रेट होने वाला है। जल्दी से जल्दी ये चीज छोड़ दो, राइट। आपका बाल गिरते हुए देखता है कभी कभी सपना में। प्रभु ने बोल रहा होता है कि आपका जो महिमा है ना, जो प्रमोशन कुछ आ रहा है ना स्पिरिचुअली, फिजिकली, वो आपके जीवन में वो घूमने वाला है। इसलिए आपका जीवन में कुछ चीज आपने कर रहा है वो छोड़ दो, मेडिटेट करो। कुछ आपने गलत कर रहा है तो आपने करना छोड़ दो। कभी कभी वो आपने नहीं सुन लिया, सपना को आपने इंटरप्रेट करना नहीं जाना, तो क्या होता, प्रभु ने बोलना ही छोड़ देता, सपना देखना ही छोड़ देता। एंड डे बाय डे आप रिग्रेट होता, जीवन में रिग्रेट होना शुरू करता। लास्ट टाइम आपने दांत गिरते हुए देखता था ना, तो वो टाइम क्या हुआ, आपका शक्ति गुम गया, फिजिकली, स्पिरिचुअली। कभी कभी क्या होता, आपका बुद्धि भी घूमना शुरू करता उसके टाइम से। पहले बहुत स्मार्ट था, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब तो बहुत पगलूल हो गया। मैं भी आप प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करना छोड़ दिया था। प्रभु ने देखा रहा है कि बाल गिर रहा है, आपका शक्ति, अभिषेक गिर रहा है, ऐसा नहीं करो। एंड कभी कभी प्रभु ने क्या सपना में देखा था, इंटरप्रिटेशन नहीं जानता, लोग ने अनुवाद करना नहीं जानता। जब अनुवाद करना नहीं जानता ना, योसेफ जैसा हो जाता, योसेफ जैसा, कि वो ने जाकर ब्रदर को बता दिया कि मेरे जीवन में महिमा आ रहा है, सब आपका जो भी प्लांट है, आपका जो भी क्रॉप्स है, आपका जो भी धान चावल है, मुझे मेरा धान चावल से प्रणाम कर रहा था। तो वो ने बोला, ओ हमारा पास अब प्रभुत्व करने वाला है, बोलना शुरू किया। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि कभी कभी आपके पास इंटरप्रिटेशन नहीं है तो लोग को बताता, एंड कुछ लोग ने आपको समझता है तो इंटरप्रिटेशन उसने आपको हेट करना शुरू करता है। कभी कभी मैन ऑफ गॉड के साथ जाता, आप सपना लेकर सपना बता देता है, एंड वो मैन ऑफ गॉड ने आपको हेट करना शुरू करता है। कभी कभी आपको वो मैन ऑफ गॉड ने आपको विरोध करना शुरू करता है बाद में, क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड ने देख लिया आपके जीवन में महिमा आने जा रहा है। एंड कुछ विचार, कुछ लोग
क्या होता है कि उसके जीवन में वो इंटरप्रिटेशन नहीं होता, एंड कुछ बुराई चीज उसके जीवन में चल रहा है ना, एंड उसने कुछ रिग्रेट वाले चीज कर रहा है ना, मुझे आकर सुना देता, सपना सुना देता, एंड उसको इंटरप्रिटेशन पता नहीं है, पर मेरा पता है, बट टेक्निक लगाकर मैं उसको ये चीज अच्छा, ये चीज करो बोल देता हूँ, बट मैं नहीं बोलता हूँ कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसने क्या कर रहा है क्योंकि इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। कभी कभी ऐसा सपना देखता लोग ने, उसको इंटरप्रिटेशन करना ही नहीं जानता क्योंकि बहुत डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन होता, कुछ डिफिकल्ट सपना होता, एंड उसका इंटरप्रिटेशन का वरदान चाहिए वो जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 7 गाय निकल गया एंड 7 गाय तंदुरुस्त निकल गया, तो कमजोर गाय ने तंदुरुस्त गाय को खा लिया, तो कैसे हो सकता है वो 7 वर्ष ये जगह में अनिकाल होने जा रहा है? तो योसेफ ने इंटरप्रेट कर दिया था ना और राजा को, तो कैसे वो हो सकता है? यू सी, कभी कभी क्या होता कि सपना बहुत मिस्टीरियस होता है, आप ही नहीं जानता क्या हो रहा है। यू सी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कभी कभी प्रभु जब सपना में बोल रहा होता है ना, लोग नहीं जानता, इसलिए आत्मिक सपना को आप सीरियसली लेना शुरू करो तो आत्मिक सपना में प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दे रहा होता। कभी कभी आप रिग्रेट होने जा रहा है, तो रिग्रेट करने जा रहा है, ये चीज कर रहा है तो आपने ये गलती कर रहा है। तो मेरे जीवन में बहुत सारे प्रभु ने हेल्प किया है सपना के जरिए। मैंने कुछ गलती कर रहा होता हूं ना, प्रभु ने देखा था कि ये गलती के जरिए आपके जीवन ये होने जा रहा है। यू सी, मेनी टाइम आपके जीवन में कुछ कमजोर सपना दिखता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का ने बोलता है कि मैंने लड़की आकर सोया हुआ सपना देखा, वो उसको जो सपना देखा ना, उसको स्पिरिचुअली क्या देख रहा है कि उसका माइंड का गंदा और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उसका, इसलिए शैतान ने उसको गिरा रहा है। इसलिए शैतान को डांटना छोड़ दो, बट आपका जीवन क्या करना, आपने अपडेट करना शुरू करो। कुछ आप अमीर हुआ सपना देखा है तो प्रभु को पूछो कैसे अमीर बनना, दुआ करना शुरू करो। नेक्स्ट टाइम कभी कभी ड्रीम में ही देख रहा होता आपने कि किस तरीका से क्या करना, आपने बोल रहा होता है कि आप उपवास बसना शुरू करो, एंड आपने उपवास आज बैठ लिया क्योंकि आज तो प्रभु को सुन लिया था स्पिरिट में, टुमारो खा रहा था, प्रभु ने बोला होता नहीं खाओ, 21 डे फास्टिंग बसो, 1 वीक फास्टिंग बसो, बैठो, एंड आपने नहीं बैठता है तो क्या होता है आपके जीवन में फिर गलत चीज, जो अनुग्रह पाने वाला था ना वो अनुग्रह घूमना शुरू करता। इसलिए आपने क्या करता नहीं, बट आपने जो प्रभु ने बोला ना पूर्ण रूप में एक्सीलेंट रूप में किया कि नहीं, सही रूप में किया कि नहीं, प्रभु ने बोला हुआ चीज। किसी भी लोग के लिए कुछ भी नहीं करो, पास्टर के लिए, प्रोफेट के लिए, एपोस्टल के लिए नहीं करो, प्रभु के लिए और खुद ही का भलाई के लिए करो, क्योंकि जो योजना प्रभु ने आपके लिए बनाया है ना, भलाई उन्नति के लिए, नुकसानी के लिए नहीं। बहुत सारे क्रिश्चियन के जीवन में जब और अंडर जा रहा है ना, जीवन में डाउन जा रहा है ना, वो उसने मुझे ऐसा नहीं बोलो कि नहीं मैं इतना साल क्रिश्चियन हूं, मैं अभी भी ऐसा प्रॉब्लम में हूं, मैंने कुछ सब किया, प्रभु ने बोला हुआ नहीं किया। आपने मिडनाइट में वो उठ कर दुआ भी नहीं किया 10 मिनट, यीशु के नाम में सब शैतान का अंधकार का शक्ति, मेरे घर में बीमार लेने वाला आत्मा, जितना भी लोग ने मेरे जीवन में मंत्र तंत्र कर रहा है, यीशु के नाम में उसको ब्रेक करता हूँ। जो भी सपना में, जो भी ये दुष्ट आत्मा, जो भी शक्ति, जो भी सामर्थ्य, जो भी कोरोना और जो भी वायरस घूम रहा है, वो बीमार ने मुझे छू नहीं सकता यीशु के नाम में। रे बाबा बाबा सोथो करके 10 मिनट भी स्पिरिचुअल वारफेयर नहीं किया मिडनाइट प्रेयर में। एंड बहुत सारे तांत्रिक लोग आपके जीवन को खराब करना है, नष्ट करना है, तो 12 o'clock वो जाकर आपके विरुद्ध में तंत्र विद्या करता है। आपके साथ यीशु तो है, बट अभी भी आपने बैड सपना क्यों देख रहा है? क्योंकि आप मिडनाइट आवर में दुआ नहीं किया। यीशु एवरी टाइम नाइट टाइम में दुआ करता था, अर्ली मॉर्निंग, घाम धूप आने से पहले दुआ करता था यीशु ने, कभी भी डे टाइम में दुआ नहीं किया। नाइट टाइम में जब दुआ करता था ना, यीशु ने सपना विजन देखता था, आज के दिन क्या करना मैंने। प्रेरितों का पुस्तक आप जब देखता है तो उधर पावल है, पावल जो सावल सताने के लिए जा रहा था क्रिश्चियन को, तो वो उसने विजन देखा, वो गिर गया, विजन देखा, तो उसको बोला कि पावल पावल मुझे क्यों अब सता रहा है? तो यीशु ने बोला कि मैं यीशु हूं, तूने मेरे सता रहा है। एंड उसने विजन देखा एंड उसने आत्मिक रूप में सुना। तो जब अननियास आकर उसको दुआ कर दिया, उसको कुछ गिर गया, तो उसने आत्मिक रूप में देखना भी शुरू किया। तो क्या हुआ, वो टाइम से वो बहुत आत्मिक रूप में प्रभु यीशु स्वयं ने ट्रेन करना शुरू किया उसको। एफिसी का पुस्तक आपने 1 का 15 से लेकर 19 तक देखता है, तो पावल ने दुआ किया मंडली को, वो ने जाना कि उसका आत्मिक की आंखें खुल गए ताकि उसने परमेश्वर का प्रकाश और परमेश्वर का चीजें जान ना सके। सो इसलिए पावल इतना आत्मिक के रूप में जानना शुरू किया कि आत्मिक की आंखें खोलने के लिए दुआ करना पड़ता है। मैंने मंडली को टेस्ट क्या होता है, कुछ आपने खाता है तो आपने उसको मुख मीठा होता है ना, इसलिए बाइबल ने क्या बोलता है कि टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। प्रभु को चाखो
और जानो कि प्रभु भला है। तो प्रभु को चाखना एक चाखने के लिए आपका आत्मिक एबिलिटी होता है। प्रभु का उपस्थिति में आपको मजा लगता है। एक प्रोफेट इजिकेल को 3:1-3 में आपने जब देखता है तो इजिकेल का प्रभु ने वचन दिया, एक वचन का एक स्क्रोल दिया, उन्हें खाया। खाने के बाद उसको मुख मीठा हुआ और हनी जैसा स्वीट हुआ, बहुत मीठा हुआ। एंड बाद में वो फिर बिटर हो गया। वो आत्मिक रूप में वो ने फील किया, फिजिकल रूप में नहीं, आत्मिक रूप में बिटर स्वीट फील किया। इसलिए उसका आत्मिक सेंसेस ओपन हुआ, आत्मिक सेंसेस ऑफ टेस्ट। इसलिए बाइबल ने बोलता है कि टेस्ट एंड सी दैट लॉर्ड इज गुड। प्रभु को चाख कर देखो कि प्रभु भला है। सो यू फील लाइक यू आर टेस्टिंग गॉड स्वीट। एडिक होता, कुछ खाने चीज में एडिक होता, कुछ सिगरेट पीने चीज में एडिक होता। जब प्रभु को चाखता है ना, उसको लगता है मुझे ये नहीं चाहिए। सो बट हाउ मेनी लर्न, आज कितना लोग ने कुछ चीज सीखा, कितना लोग ने आपको लगा कि कुछ नयाँ इम्पोर्टेन्ट चिज सिका। यीशुको नाउँमा म यस घडी उहाँको जीवनमा चङ्गाई रिलिज गर्छु सिरदेखि पैतालासम्म। थैंक यू जीसस, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया यीशु। आप जब दुआ करती है, आपने दर्शन देखती है, आपके मंडली में जितना भी लोग के जीवन में कुछ होने जा रहा है तो एवरी टाइम आप देखती है दर्शन में। आपको परमेश्वर ने प्रोफेटिक गिफ्ट दिया है, आपको जीवन में प्रोफेटिक गिफ्ट दिया है। बट मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ने आपको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, बहुत सारे लोग ने आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, आपके विरुद्ध में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। बट परमेश्वर का आत्मा ने बोल रहा है कि परमेश्वर का रूह और परमेश्वर का स्वर्गदूत एंजल्स आपके साथ है और आपका विजन को कभी भी डाउन होना नहीं देना। यीशु के नाम में मैं इम्पार्टेशन रिलीज गर्छु। और अभिषेक बाबा 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 साथारा बाबा बाबा बाए रोखो थो रो बो 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 सांथा एंजेलिक रैलम में उसको मैं असर करता हूँ आज के दिन से। एंजेलिक रैलम, एंजेलिक विजन देखने के लिए यीशु के नाम में माखो सोखो ठो रो बे 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 रेटेलिया बोलो 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 रांडा लीग्रा आस्ता लेब्रे। एंजेलिक अभिषेक आ रहा है, एंजेलिक अभिषेक मा रोखा सेके राथा लिया थो रो बो 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 सांडा ओ मामब्रे के सेके चले बे 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 बे। आज के दिन से रेविलेशन, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का अनुग्रह, चंगाई का अनुग्रह, अभिषेक और बढ़ने लग रहा है, और बढ़ने लग रहा है, और बढ़ने लग रहा है। रोसे के टेले बे सिस्टर अस्मिताको जीवनमा केही इभेन्टहरू भएको थियो, डिस्प्लेमा देखिरहेको छु। अस्मिताको जीवनबाट आजको दिनदेखि तपाईको जीवनमा सबै कुरामा क्लियरिटी म रिलिज गर्छु। In the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, let your hand come upon her. परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का अभिषेक आजको दिनदेखि फ्रेश अभिषेक, पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम, यीशुको नाउँमा पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम, हालेलुया, पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम हृदयबाट तपाईको जीवनमा आएको अन्य भाषाहरू बोल्नुहोस्। राबा सोठो रोबो बोबो सेटे रेबे बेबे रान्डा राबा बाबा बाबा बा साथा राबा बा touch रो सोठो रोबो बोबो बो साकाटाया बाबा बाबा रे ब्रेकेथो रोबो सांडा रिब्रा खाट। अभिषेक गर्नुभएछ, प्रोफेटिक बोलावट। तपाईले जो व्यक्तिलाई देख्नुहुन्छ, तपाईको जीवनमा परमेश्वरले प्रोफेटिक अभिषेक, प्रोफेटिक भिजन, प्रोफेटिक रूपमा सबै व्यक्तिहरूलाई जान्नुको लागि र परमेश्वरले महान बोलावटको लागि, बिजनेस गर्नुको लागि, विभिन्न कुरा सेवाकाई गर्नुको लागि हरेक कुरामा तपाईलाई उचाल्नु हुनेछ। आजको दिनदेखि उचाल्नु हुनेछ हरेक कुरामा। रो सोठो रोबो खो सेकेथे आजको दिने तपाईँ कहिले निचा हुने छैन। हरेक कुरामा परमेश्वर तपाईलाई उचाल्नु हुनेछ। बेका सान्डा हरेक बन्धनलाई म तोड्छु र परमेश्वरको अभिषेक, फ्रेश अभिषेक रिलिज गर्छु। टच इन द नेम अफ जीसस, in the name of Jesus. Makata raba baba baba baba. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. शुक्रिया खुदा, यीशु के नाम में rabas kados ka brika thandere debia in Jesus name.